Again, we give thanks unto God for the great privilege we have received through Jesus Christ our Lord to study His Word. हम परमेश्वर को फिर एक बार धन्यवाद देते हैं ये अच्छा सौभाग्य के लिए कि हम उसके वचन को सीख सकें। Last week we have studied about the Godheads. और पिछले समय में हम परमेश्वर की दैविकता के बारे में देखे थे। Our God exists as a Trinity. हमारा परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर के रूप में हमें दिखता है, But we believe that God is one. लेकिन हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर एक है। So from the Bible, from the Old Testament and the New Testament, we see how it is connected. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. They are three, but they are one. और पुराने नियम से और नए नियम से हमने देखा कि किस प्रकार हमारा परमेश्वर जो है एक दूसरे से जो है कनेक्टेड है, और पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, ये तीनों जो है एक होकर देखते हैं। Our God is not a God, but our God is one God. हमारा परमेश्वर एक परमेश्वर नहीं, मतलब अनेक परमेश्वर में एक नहीं है, लेकिन हमारा परमेश्वर एक ही है। The Father is God, the Son is God, and the Holy Spirit is God. पिता परमेश्वर है, पुत्र परमेश्वर है, पवित्र आत्मा भी परमेश्वर ही है। They are three different persons, but at the same time, in essence, they are one. और तीन अलग अलग व्यक्तित्व, लेकिन सोच में एक। So, in the beginning, for a moment, we will study about God the Father. और शुरुआत में हम थोड़ा परमेश्वर पिता के विषय में देखेंगे। The Holy Trinity consists of three persons. और पवित्र त्रिएक जो है वो तीन व्यक्तित्व पे है, namely the Father, the Son, and the Holy Spirit. देखा जाए तो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। That means Trinity includes three persons. इसका मतलब त्रिएक मतलब तीन व्यक्ति के बारे में। This doctrine, the doctrine of Trinity, we can see in the Old Testament. और ये त्रिएक का जो विषय है वो हम पुराने नियम में हम देखते हैं। In the New Testament, we can see the Father as an electing the Almighty God. और हम पुराने नियम में देखते हैं कि परमेश्वर को जो है सर्वशक्तिमान बताया गया। He is the loving, living God. वो एक प्रेमी जीवित परमेश्वर है। He bestows his blessings upon his children. अपने बच्चों के ऊपर वो अपने आशीषें उंडेलता है। But the Son is presented as a suffering servant of God. लेकिन पुत्र को एक दुख उठाने वाला परमेश्वर के दास के रूप में बताया गया। Same time, he upholds the whole universe. और इसी के साथ साथ वो पूरे कायनात को अपने हाथ में रखा हुआ है। The Holy Spirit is presented as the indwelling spirit. और पवित्र आत्मा जो है वो अंदर रहने वाला एक आत्मा के विषय में बताया है। The duty of the Holy Spirit is to comfort his children. पवित्र आत्मा का काम है कि अपने बच्चों को वो सांत्वन दे। He regenerates. वो जो है और पुनर्निर्माण करता है। Last week we have studied, he is the one who baptized us in the Spirit. और पिछले सप्ताह हमने पढ़ा कि वही है जिन्होंने हमें आत्मा में बपतिस्मा दिया है। He energizes us. वो हमें जो है ऊर्जा देता है। When we become weak in our spirit, that we cannot grow in the spirit spiritually, it is the Holy Spirit who energizes us. और जब हम कमजोर हो जाते हैं और जो है आत्मा में बढ़ नहीं पाते, तब वो हमें ऊर्जा देकर मजबूत करता है। And he is the one who sanctified us. और वही है जो हमें पवित्र करता है। This way, we can see the Father is different, the Son is different, and the Holy Spirit is different. इस प्रकार से उनके कार्यों को देखेंगे तो हमें पता चलता है कि पिता अलग है, पुत्र अलग है, पवित्र आत्मा अलग है। And also in the Bible we can see always in the Trinity
Father is the first person. और हमेशा हम देखते हैं त्रिएक में पिता पहला व्यक्ति And Father is the creator. और पिता ही सृष्टि करता है। He is the father of all creation. वो सारे सृष्टि का पिता है। But in between the Son and the Father, there's an intimate relationship. लेकिन पिता और पुत्र के बीच में एक घनिष्ठ जो है संबंध है। Father is the father of our Lord Jesus Christ. पिता जो है यीशु मसीह का पिता है। Several times in the New Testament we can see disciples as well as apostles, they say the father of our Lord Jesus Christ. और जो है हम नए नियम में देखते हैं जो उनके शिष्य थे, उनके प्रेरित थे, वो बोलते थे हमारे प्रभु का पिता। He is the father of our Lord Jesus Christ. वो हमारे प्रभु यीशु मसीह का पिता है। He is our father also. वो हमारा पिता भी है। Today we call God as our father. आज हम परमेश्वर को अपना पिता बोलते हैं। How is it possible that God the Almighty who created the whole universe became our father? Yes, image. ऐसा कैसा हो सकता है कि सारे कायनात का सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारा पिता कैसे हो जाएगा? Today we call Abba Father, help us. हम आज अपा पिता करके पुकारते हैं, हमारी मदद कर। God the Father is our Father because we believe in Jesus Christ, in His Godhead. और जो है परमेश्वर पिता हमारा पिता इसलिए है क्योंकि हम यीशु मसीह जो पुत्र परमेश्वर उस पर विश्वास करते हैं। Today God is the Father of all those who believe in Jesus Christ. आज परमेश्वर हम सबका पिता है जो यीशु मसीह पे भरोसा करता है। That's the greatest privilege we have in God today. आज परमेश्वर में ये हमारे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है। No one otherwise can call God as Father. और कोई ऐसा नहीं है जो परमेश्वर को पिता करके पुकार सके। The same way in the New Testament we can see the fatherhood of Jesus. और हम नए नियम में हम परमेश्वर यीशु मसीह का पिता रूपी बात देखते हैं। We will read few references so that it is better for you to study than going on giving lecture. और जो है हम कुछ संदर्भ देखेंगे जिससे आपको समझने में आसानी होगी, ऐसे जो है सिखाने से मतलब नहीं। Let us turn to the book of Psalms chapter 2 verse 7. भजन संहिता उसका दूसरा अध्याय और 7वां वचन, भजन 2:7। When give you reference, you may try to read as fast as possible because it is being recorded. और जब हम संदर्भ बोलते हैं तो जल्दी से जल्दी आप पढ़ें क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है। There should not be any lag in talk and reading the word of the Lord. और जो है मुझसे उत्पन्न हुआ। Yes. The Lord has said to me, "You are my son. Today I have begotten you." और यहाँ पर कहता है कि परमेश्वर यूं कहता है कि तू मेरा पुत्र है और आज तुझे मैंने उत्पन्न किया है। So Son of God is the begotten one. और परमेश्वर पुत्र जो है वो दिया हुआ पुत्र है। The Son of God is not a created being. परमेश्वर का पुत्र को बनाया नहीं गया है। Jesus Christ is not a created being. यीशु मसीह जो है बनाया गया कोई वस्तु नहीं He है, is the begotten of the Father. वो परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न किया हुआ है। You should understand the difference between the creation and begotten. और आपको इस फर्क होना चाहिए कि सृष्टि और जो है उत्पन्न किया हुआ या दिया गया। In the mind of God, as per the concept of the Almighty God, the Son was always in the Father. और जैसे परमेश्वर की योजना के अनुसार पुत्र जो है पहले से उनके जो है जहन में था। There was a time that he was begotten. और एक समय था जब उसे दिया गया। When he was begotten, कब उसे दिया गया? when he was begotten, two sense. One, when God existed, we don't know that time, millions and trillions. God is everlasting, without beginning and end. और जो है begotten या दिया गया जब हम देखते हैं उसका दो मतलब होता है। एक परमेश्वर जो आदि से है, उसका समय का नियुक्त नहीं है, कब से शुरू करके उसको वो आदि से ही है। At that time, the Son was in the God. और उस समय पुत्र जो है परमेश्वर के अंदर ही था। When there was Father, the same time there was Son. जब पिता था उसी समय पुत्र भी उसके अंदर था। Son is eternal.
और पुत्र जो है अनंत काल का है, always is eternal. वो हमेशा के लिए है। Only an eternal Son, an eternal God can give eternal life. और सिर्फ एक अनंत काल का परमेश्वर ही अनंत काल जीवन दे सकता है। We believe that we have eternal life. हम विश्वास करते हैं कि हमारे पास अनंत काल का जीवन है। You have eternal life? आपके पास है? How you got it? When you believed in Jesus Christ, you got eternal life. Right? कैसे मिला आपको? जब यीशु मसीह पे आपने भरोसा किया तब वो अनंत काल का जीवन आपको मिला। Then we'll ask you a question. एक सवाल पूछेंगे, What is the meaning of eternal life? अनंत काल का जीवन मतलब क्या? अनंत जीवन क्या है? It has no end. जिसका कोई अंत नहीं। So when the Son has given us eternal life, it doesn't have an end at all. और जब पुत्र ने हमको वो अनंत जीवन दिया है जिसका कोई अंत नहीं है, That is a life we have in us. और वो जीवन आज हमारे अंदर है। So only an eternal Son can give eternal life. सिर्फ एक अनंत काल का पुत्र ही अनंत काल का जीवन दे सकता है, That is called everlasting life. जिसको बोलते हैं अनंत काल का जीवन। Those who believe in Christ Jesus will live forever and ever and ever and ever. जो परमेश्वर यीशु पे विश्वास करते हैं वो हमेशा 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 के लिए जीवित रहेंगे। There won't be an end for life in eternity. और अनंत काल में जिसका कोई अंत न हो। We believe in eternal Elysium, heaven. और जो है हम अनंत काल के स्वर्ग के बारे में जानते Heaven हैं। is eternal. स्वर्ग जो है अनंत काल का है, God is eternal. परमेश्वर अनंत काल है। So when we believe in Christ Jesus, He has given us eternal life and we will never have an end. और जब हम उस पर विश्वास करते हैं, प्रभु ने हमें अनंत जीवन दिया है जिसका कोई अंत नहीं होगा। So in the eternal Father, in the eternal God, there is an eternal Son always living. और उस अनंत काल के परमेश्वर पे एक अनंत काल का पुत्र है जो हमेशा उसके साथ रहा। It's not like that God came here in the form of a human being and that time God begotten the Son. ऐसा नहीं कि परमेश्वर इस जगत में मनुष्य बनकर आया तभी पुत्र मिला। Always the Son is in the eternal Father. हमेशा के लिए अनंत काल से पुत्र जो है पिता के अंदर ही था। Please turn to John chapter 1. यूहन्ना के पुस्तक पहला अध्याय सुसमाचार Verse 40. 1:14। जॉन 1:14। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसा पिता के एक लौते की महिमा। Yes. We have seen His glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. और हमने उसकी महिमा ऐसी देखी जैसे उस अनंत काल का परमेश्वर की महिमा। The Word became flesh. और शब्द देहधारी हुआ। What is this word? ये वचन क्या है? For that we have to come to 1:1. Chapter इसीलिए 1. पहला वचन पढ़ेंगे। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। The Word was God. और वचन ही परमेश्वर था। When He was God, कब वो परमेश्वर बना? in the beginning. शुरुआत में, आदि में। So when was that in the beginning? वो शुरुआत कभी का है? शुरुआती नहीं। For God there is no beginning. परमेश्वर के लिए कोई शुरुआती नहीं। So in the beginning of the beginning of the beginning of the beginning, millions and trillions of years before, our God was existing. He is always God. और जो है आदि में मतलब आदि से पहले, जब हजारों सैकड़ों अरबों साल पहले, जिसका कोई गिनती नहीं है, तभी से वो परमेश्वर है। So when we study about Godhead, we should understand that in the Bible we have only a history of 6,000 years. और जब हम इस परमेश्वर की दैविकता के बारे में पढ़ते हैं तो हमें याद रखना है कि हमारे पास जो रिकॉर्ड है वो 6000 वर्ष पुराना ही है। So in 6,000 years before, there were so many other things which God did not disclose to us. 6000 वर्ष के पहले बहुत सारी बातें थी जिसको परमेश्वर ने हमें प्रकट नहीं किया है। Whatever He wanted us to know has been written in the Scripture and given unto us. जो कुछ हमें जानना जरूरी था
उसी को परमेश्वर ने यहाँ पर लिख के हमें दिया है। And all other thing about Godhead and His creation and His works, we will come to know when we will go to heaven. लेकिन बाकी की सारी बातें, वो कैसा किया, पहला शुरुआत में क्या था क्या नहीं था, ये सब हम जब स्वर्ग जाएंगे तब पता चल जाएगा। Verse 18, please read. 18 वचन पढ़े। John 1:18. परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया। No one has seen God at any time. किसी ने भी परमेश्वर को नहीं देखा। Many people express their willingness to see God. बहुत सारे लोग अपनी इच्छा प्रकट करते हैं प्रभु को देखने के लिए, But the Bible says they could not see God. लेकिन बाइबल कहती है किसी ने नहीं देखा। Exactly as God exists, no one could see Him. जैसे परमेश्वर है उसी रूप में किसी ने भी परमेश्वर को नहीं देखा। We know Adam walked with God. हम जानते हैं आदम परमेश्वर के साथ चला, Enoch walked with God. हानोक जो है परमेश्वर के साथ चला। How many years Enoch walked with God? कितने साल चला? 665 How many years Enoch walked with God? कितने साल हनोक चला? 300 years. 300 साल। Okay, 300 years Enoch walked with God. Of course, he was in the presence of God, but he could not see God as He is. हनोक जो है 300 साल प्रभु के साथ चला, प्रभु के संग संग रहा, लेकिन जैसा परमेश्वर है उसी तरीके से उसको देखा नहीं। Moses walked with God. मूसा परमेश्वर के साथ चला, Abraham walked with God. अब्राहम चला, And all prophets in the Old Testament walked with God. जितने भविष्यवक्ता हैं वो सब प्रभु के साथ चले। The apostles and disciples walked with God. प्रेरित और जो है शिष्य लोग वो भी परमेश्वर के साथ चले। Paul reached the third heaven and heard the voice of the angels in heaven. पौलुस जो है तीसरे आसमान तक पहुंचा और आवाज भी सुनी स्वर्गदूतों का। John in the Isle of Patmos saw Jesus, और योहन्ना जो है पतमोस द्वीप में उसने यीशु को देखा, but they could not see God exactly as He is in His glittering glory. लेकिन जैसा परमेश्वर है उसकी पूरी महिमा और वैभव में किसी ने नहीं देखा। So now the Son who is in the bosom of the Father says who God is, what He is. और अब पुत्र जो उसके सीने से लगा हुआ है वो बता रहा है, वो प्रकट कर रहा है कि परमेश्वर कैसा है। So that is one duty of the Lord Jesus Christ, to show who God is. और ये एक पुत्र का या यीशु मसीह का एक कार्य था कि वो बताए कि परमेश्वर कैसा है। So Son is begotten of the Father, पुत्र जो है परमेश्वर का दिया हुआ है, and the Father declares that the Son belongs to Him. और पिता घोषित करता है, घोषणा करता है कि ये पुत्र मेरा है। You know all very well Matthew 3:70. मत्ती 3 का 17 सबको पता होगा। मत्ती 3 का 17। It happened at the time of the baptism of Jesus Christ. और देखो ये आकाशवाणी हुई थी, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। This is my beloved Son in whom I am well pleased. और जो है यहाँ पर परमेश्वर घोषणा करता है, जब यीशु मसीह बपतिस्मा लिए उस समय का घटना है कि आकाशवाणी होती है, ये मेरा सबसे प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ। Here the Lord, the Almighty Father told that Jesus Christ is the beloved begotten. और जो है यहाँ पर सर्वशक्तिमान परमेश्वर कह रहा है, पिता कह रहा है कि ये मेरा एकलौता पुत्र है। The same way, again we can see the Father declares who the Son is in Matthew 17:5. और मत्ती 17:5 में हम देखते हैं कि पिता बताता है, प्रकट करता है कि यीशु कौन है। Matthew 17:5. मैथ्यू 17:5। वह बोल ही रहा था कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। This is second voice from the Father. ये पिता का दूसरी बार ये शब्द सुनाई दे। This occurred at the time of the transfiguration of Jesus. ये पर यीशु मसीह का जब रूपांतर हुआ उस समय की बात है। John and James and Peter along with Jesus Christ were on the Mount of Transfiguration. यूहन्ना, याकूब और पतरस वो वहां पर उस पहाड़ पे थे
जहाँ पर जो है रूपांतर हुआ, There they heard the voice. वहां पर वो आवाज सुनी। Who spoke? किसने बोला? The Father spoke. पिता ने कहा, This is my beloved Son, ये मेरा प्रिय पुत्र है, in whom I am well pleased. जिसमें मैं अति प्रसन्न हूँ, Hear him. उसकी सुनो। So Father said, Jesus Christ is the beloved Son. और पिता ने कहा वो मेरा प्रिय पुत्र है। And let us see Matthew 11:27. मत्ती 11:27 देखेंगे। Matthew 11:27. मत्ती 11:27। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है, और कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र, और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। Here the Son speaks about the Father. यहाँ पर हम देखते हैं पुत्र जो है पिता के विषय में बोल रहा है। Father spoke about Son. पिता ने पुत्र के विषय में बोला। How did Father declare the Son? कैसे पिता ने घोषणा किया पुत्र के बारे में? This is my beloved Son. ये मेरा प्रिय पुत्र है, Listen to her. उसकी सुनो। The same way the Son says that the Father belongs to him. और उसी प्रकार से पुत्र कहता है पिता उसका है। All things have been delivered to me by my Father. सारी बातें मेरे हाथ में दिया गया है, मुझे वो अधिकार दिया गया है पुत्र पिता के द्वारा। And no one knows the Son except the Father. और कोई भी पुत्र को परमेश्वर पिता के अलावा नहीं And जानता, nor does anyone know the Father except the Son. और कोई भी पिता को भी नहीं जानता पुत्र के अलावा। So there is an intimate, unexpressible relationship between the Father and the Son. तो यहाँ पर हम देखते हैं पिता और पुत्र के बीच में एक घनिष्ठ रिश्ता है जिसको कोई बता नहीं सकता। That is why we are trying to understand through the Word of God. और उसी बात को हम वचन के द्वारा समझने की कोशिश कर रहे हैं। The Son is different, the Father is different. At the same time, they are connected. They are one in essence. पिता अलग है, पुत्र अलग है, लेकिन उसी समय दोनों एक है। Matthew 16:16 we will read. मत्ती 16:16। मत्ती 16:16। समौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। Yes. Now, a human being, Peter, one of the disciples of Jesus, declared who Jesus is. और यहाँ पर हम देखते हैं एक मनुष्य जो यीशु मसीह का चेला था पतरस, वो यहाँ घोषणा कर रहा है कि यीशु कौन है। You are the Christ, you are the Messiah. तुम मसीह हो। God became Christ, the Messiah, Jesus Christ. परमेश्वर जो है मसीहा बन गया, यीशु मसीह। But who is he? लेकिन वो कौन है? Son of the living God. वहां पर वो कहता है पतरस की ये तू जीवित परमेश्वर का पुत्र है। Son of the living God. जीवित परमेश्वर का पुत्र है। So whenever you see Son of God, Son of God, Son of God, Son of God, you should understand it is a title, it is a name for Jesus. और जहां भी आप देखते हैं परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र, तो आप ये समझो ये उसका एक नाम है, उसका टाइटल है। Now our Muslim brethren, they challenge us and they ask this question, is your God married that you are a son? और हमारे मुसलमान भाई लोग हमें जो है चुनौती देते हैं और पूछते हैं कि आपके परमेश्वर का बेटा है, मतलब उसने शादी किया था क्या? They do not understand the word of God. परमेश्वर के वचन को समझ नहीं पाते। Son of God is a title. परमेश्वर का पुत्र एक जो है टाइटल है, एक नाम है। It is one of his names. ये परमेश्वर का एक नाम है। And now Peter told, you are the Son of God. और यहाँ पर पतरस कहता है तू परमेश्वर का पुत्र है। Even demon told you are the Son of God. और जो है दुष्टात्मा ने भी बोला तू परमेश्वर का पुत्र है। In the land of Gadarenes, गारसिन में the ghost, the demon told, Son of God, depart from us. We have nothing to do with you and us. और जो है यहाँ पर गारसिन में वो दुष्टात्मा कह रहा है हे परमेश्वर के पुत्र हमसे दूर हो, हमारा और तेरा क्या मेल। When demon told you are the Son of God, demon understood that Jesus Christ was God and is God. और जब दुष्टात्माएं उसको परमेश्वर का पुत्र करके उसको पहचाना, इसका मतलब ये है कि वो जानते थे ये परमेश्वर ही। Many people today do not believe Jesus as God. आज बहुत सारे लोग यीशु मसीह को परमेश्वर करके मानते ही नहीं। But 2025 years before Satan told Jesus is God.
लेकिन 2025 साल पहले शैतान भी मान लिया कि यीशु मसीह परमेश्वर है। What a great God we have in Christ Jesus. मसीह में हमारा कितना बड़ा परमेश्वर है। Jesus was the only means for God to express who God is. और यीशु मसीह सिर्फ एकमात्र जरिया था जिससे परमेश्वर में बता सका कि परमेश्वर कौन है। But when he came in human form, always on the earth, he was subject to the will of the Father. और जब भी मसीह इस दुनिया में धरती पर आया, हमेशा वो पिता के अधीन या पिता के निर्देश अनुसार He था। gave up the glory in heaven and came on this earth in human form. उसने अपने सारे वैभव और सारी महिमा को छोड़कर इस धरती पर मनुष्य बनकर He आया। was 100% God. वो 100% परमेश्वर था He was 100% man also. और इसके साथ साथ 100% मनुष्य भी था। He did miracles. उसने चमत्कार किए He cast out demons. और दुष्टात्मा निकाले, He healed the sick. लोगों को चंगा किया, He raised the dead. मरे को जिंदा किया He stopped the nature. और जो है प्रकृति को रोका। And he did several miracles that are written in the Bible and also that are not written in the Bible. और वो कई चमत्कार किए जो बाइबल में लिखा है और जो नहीं लिखा है ऐसे भी चमत्कार किए। Through his works, he had shown to the world that he is God. अपने कामों से पर यीशु ने बताया कि वो परमेश्वर है। At the same time, he was hungry, he was thirsty, he was weak, he slept like man, he cried like man, he was sorrowful, he was in grief, and he cried to the Father, Father, if it is possible, remove this cup from me. And such a way he had already shown his human nature too. और वो जो है एक मनुष्य के समान वो भूखा भी रहा, प्यासा भी रहा, थका भी, आराम भी किया, सोया भी, और फिर बाद में जब दुख आया, दुख उठाया, तब उसने परमेश्वर से मनुष्य के समान रोकर प्रार्थना भी की, प्रभु अगर ये कटोरा मुझसे हट सकता है तो हट जाए। So Jesus on earth, he was 100% man, 100% God. तो दुनिया में जब था, पृथ्वी पर जब था, तो यीशु मसीह 100% परमेश्वर, 100% मनुष्य बचा। But certain things he did not know, or it was hidden from him when he was on this earth, because he was in human form. He kept on his glory in heaven and came here. कई बातें उसको जो है दर्शाया नहीं गया था यीशु को, क्योंकि वो मनुष्य रूप में था और उसने अपनी महिमा, अपनी वैभव स्वर्ग छोड़कर आया था। When the disciple asked Jesus about his coming, he told, I don't know. Even son doesn't know, only Father knows the timing of his coming. क्योंकि जब चेलों ने उससे पूछा प्रभु कब आएगा तू वापस, तो उसने बोला मैं भी नहीं जानता, क्योंकि स्वर्गीय पिता के सिवा और किसी को पता नहीं, पुत्र को भी नहीं पता। Not because the son did not know, but he kept his glory. He laid aside his glory in heaven and came here for a particular mission on this earth. Oh, because of that, he did not know what is going to happen in the near future. और इसलिए नहीं कि भाई वो नहीं जानता था, लेकिन कुछ बातें जो है उसका महिमा, उसका वैभव वहां होने की वजह से, क्योंकि वो मनुष्य रूप में लेकर आया था, तो उस यीशु मसीह जो मनुष्य है उसको वो जानकारी नहीं। So as the Father is God, God the Son also is God. जैसे परमेश्वर पिता परमेश्वर है, वैसे यीशु मसीह भी परमेश्वर का पुत्र परमेश्वर है। Eternally he is God. वो अनंत काल तक वो परमेश्वर है। He lives along with God, in God, always in God. और वो परमेश्वर के साथ रहता है, परमेश्वर में रहता है। In other words, we can say, in divine side, Jesus has no beginning. और अगर दैविकता के रूप में देखा जाए तो पर यीशु मसीह का कोई शुरुआती नहीं है, But in human side, he has a beginning. लेकिन मनुष्य रूप में अगर यीशु को देखें तो उसका शुरुआत है। Did you understand that? समझ में आ रहा है? In divine side, he is God always and he has no beginning. और अगर दैविकता के रूप में देखा जाए तो यीशु मसीह का शुरुआत नहीं है, But लेकिन मनुष्य के रूप में अगर देखा जाए तो मनुष्य बनकर जब यीशु आया उसका शुरुआत था। the word. Please turn to Galatians chapter 4, verse 4. गलतियों की पुस्तक 4:4। गलतियों की पुस्तक 4:4।
परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। Yes. But when the fullness of the time had come, God sent forth his son, born of a woman, born under the law. और जब समय पूरा हुआ तब परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, मनुष्य के रूप में अपने पुत्र को भेजा एक कुंवारी से जन्मने के लिए। When the fullness of time had come, जब समय पूरा हुआ तब, exactly when God wanted to send his son on this earth with a mission to redeem the mankind, he was sent. और जब परमेश्वर नियुक्त समय पर, जो समय उसने नियुक्त किया उस समय पर परमेश्वर ने यीशु को एक छुटकारे के लिए, मनुष्य के पापों के छुटकारे के लिए उसको भेजा। That was exact fullness of time. ये उसका समय, पूरा समय था। Then God sent forth his son, और फिर परमेश्वर ने अपने एक पुत्र को भेजा, born of a woman, वो एक स्त्री से जन्मा हुआ, born under the law, नियम के अनुसार जन्मा हुआ, born of a woman. स्त्री से जन्मा हुआ। The Holy Spirit overshadowed Mary, और पवित्र आत्मा जो है मरियम के ऊपर साया किया। the Holy Spirit took birth in the womb of Mary. पवित्र आत्मा जो है मरियम के कोख में उत्पन्न हुआ। That's the meaning of overshadowed. और उसके ऊपर साया किया का मतलब क्या है? पवित्र आत्मा मरियम के कोख में उत्पन्न हुआ And born under the law. और नियम के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार पैदा हुआ। So in human side, Jesus has a beginning. और मनुष्य के रूप में अगर यीशु मसीह को देखें तो उसका एक शुरुआत है। But at the same time, we should understand it was just for a short while. It was for a mission that God the Almighty sent you. और ये हमें याद रखना है कि एक कार्य के लिए, एक मिशन के लिए परमेश्वर ने उसको भेजा। That's what we read in John 1:40. और यही हमने यूहन्ना 1:14 में देखा। Last week we have studied from Isaiah 9:6 also about the incarnation of the Lord. यीशु का, प्रभु का जो है अवतार के विषय में हमने यशायाह 9:6 में पढ़ा था। So the Holy Spirit came upon Mary or came in the womb of Mary and there took place a birth. और पवित्र आत्मा मरियम के ऊपर साया किया, मतलब मरियम के कोख में उत्पन्न हुआ और वहां यीशु जन्मा। At the same time, he is God. और वो क्या है? परमेश्वर ही है। Eternally, he is God. अनंत काल के लिए परमेश्वर है। That's what we read in John chapter 1 verses 1 and 2. यही हम देखते हैं यूहन्ना 1:2 में। In the beginning, there was Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word became flesh. और जो है हमने पढ़ा कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था और वो वचन देहधारी हुआ। Let us read a prophecy, Micah chapter 5 verse 2. मीका 5:2 देखेंगे, एक भविष्यवाणी को पढ़ेंगे। मीका 5:2, मीका 5:2। हे बेथलेहेम एफ्रात, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इस्राएलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। Amen. Yes. As regarding the incarnation of the Lord Almighty, Micah was given a vision. और मीका को जो है यीशु मसीह का जो अवतार के विषय में वो एक दर्शन दिया गया था। You Bethlehem Ephratah, though you are little among the thousands of Judah. और ये बेथलेहम, ये एफ्रात जो है, तू यहूदा में सबसे छोटा कहलाता होगा, But out of you shall come forth to me the one to be ruler in Israel. लेकिन तुझ में से एक व्यक्ति निकलेगा मेरे लिए, एक पुरुष निकलेगा जो इस्राएल पे प्रभुता करेगा। Whose going forth are from of all, from everlasting.
और जिसका जो है अनंत काल से वो साथ में है, He is everlasting. वो अनंत काल से है। Before his birth, through Micaiah the prophet, very clearly the eternality of the Lord is written. और मीका में हम देखते हैं कई साल पहले, यीशु मसीह के पैदा होने के कई साल पहले ही भविष्यवाणी है कि यीशु मसीह जो है अनंत काल से है। This eternal Son is the Emmanuel God. और ये अनंत काल का परमेश्वर ही इमानुएल परमेश्वर। What's the meaning of Emmanuel? इमानुएल मतलब क्या? परमेश्वर हमारे बीच। God is with us. Okay. So that is another name for Jesus. और यीशु का और एक नाम है। Let's read John 17:5, the prayer of Jesus we see. यीशु मसीह का प्रार्थना हम देखेंगे, यूहन्ना 17:7, 17:5। यूहन्ना 17:5। अब हे पिता, तू अपने हाथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। Now, O Father, glorify me together with yourself. और पिता तू अपने साथ मेरी महिमा कर, With the glory which I had with you before the world was. उस महिमा को दे जो सृष्टि से पहले मेरे तेरे साथ था। Here we see Christ prays for himself. यहाँ पर देखते हैं मसीह अपने आप के लिए प्रार्थना कर रहा है। Christ prayed to the Father. मसीह ने पिता से प्रार्थना करी। What is the peculiarity of John chapter 17? यूहन्ना 17 में खासियत क्या है? This is a prayer of Jesus. ये यीशु मसीह की Only प्रार्थना the है। prayer of Jesus. सिर्फ यीशु मसीह की प्रार्थना है। Only the statement of Jesus we can see in this. इस 17 अध्याय में ही हम यीशु का वक्तव्य को देख सकते हैं। Only the words of Jesus we see in this chapter. सिर्फ यीशु का शब्द ही देख सकते हैं। Here he says he is Emmanuel God, वो कहता है कि वो इमानुएल परमेश्वर है, and he says he is eternal. वो कहता है कि वो अनंत काल से है, He was with the Father. वो पिता के साथ था, He was in the glory of the Father, पिता के महिमा में था, and they were together. वो साथ में थे। And Lord, accept me with the glory which I had with you. और उसी महिमा से मुझे भर जो मैं तेरे साथ था। And he was glorious before the world was. और दुनिया में पहले से ही वो महिमामय था, He is the Emmanuel God. क्योंकि वो इमानुएल परमेश्वर है। He was in the form of God. वो परमेश्वर के स्वरूप था। Come on, turn to the book of Philippians, फिलिपियों की पत्री निकालेंगे, chapter 2. दूसरा अध्याय, 6 and 7. 5, 6 and 7. फिलिपियर 2:5 से 7। Yeah. जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। Verse 6 says, who being in the form of God. छठा वचन कहता है जो परमेश्वर के स्वरूप होते हुए। We want all of you to open your Bible, if your Bible with you. आप सब अपना बाइबल खोलिए, Read that verse 5. पांचवा वचन पढ़िए, Verse 6. छठा वचन, Who being in the form of God. जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर So who was being in the form of God? कौन था परमेश्वर के स्वरूप में? Jesus Christ. यीशु मसीह। In the form of God means he was God. और यीशु मसीह के स्वरूप मतलब वो परमेश्वर खुद था। Jesus was God. यीशु मसीह खुद परमेश्वर था। So being in the form of God, what did he do? और परमेश्वर के स्वरूप होते हुए क्या किया उसने? Did not consider it robbery to be equal with God. और परमेश्वर के साथ उसके समान बनना वो कोई भी गलत नहीं सोचा। क्या लिखा उसमें? परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, अपने पास रखने की वस्तु नहीं समझा। Then what did he do? फिर क्या किया उसने? Verse 7. Rather, he made himself nothing by taking the very nature of servant. Oh yes. Made himself of no reputation. पढ़ो। वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया। अपने आप को शून्य करके एक दास का स्वरूप ले लिया। कहा था वो? महिमामय में, लेकिन वो दास का रूप लिया। Taking the form of a bond servant. और यहाँ पर दास मतलब क्या मालूम है?
जो बंधुआ मजदूर जैसे बोलते हैं, not an ordinary servant, एकदम साधारण दास नहीं, bond servant, और जो है बंधुआ मजदूर, doulos, जो उसको डूलोस बोलते हैं। means a servant had no voice in his master's house. डूलोस या बंधुआ मजदूर का कोई हक नहीं मालिक के पास, Whatever the master said, the slave had to obey. और जो कुछ मालिक बोलता है उसको वही करना है। साधारण जो है उससे और ये बंधुआ मजदूर में फर्क है। बंधुआ मजदूर को जो मालिक बोलता है वही करना है, आगे पीछे कुछ नहीं, No voice at all. बिल्कुल कुछ नहीं बोल सकता। Exactly, Jesus became a bond servant of the Father. और यीशु मसीह भी पिता का एक बंधुआ मजदूर बन गया। The Father told Son, go to the world. और पिता ने कहा बेटे धरती पर जा, And he obeyed the Father. और पिता की आज्ञा मानी And he came here. और यहाँ आया। And because he took the form of a bond servant, he came in the likeness of man. और क्योंकि वो एक बंधुआ मजदूर बनकर आया, उसने मनुष्य का स्वरूप में आया। Likeness of man because 100% he was man. इसका मतलब कि 100% यीशु मसीह मनुष्य था। He slept like a man, वो मनुष्य के समान सोया, cried like a man, मनुष्य के समान रोया, prayed like a man. मनुष्य के समान प्रार्थना की। Only in a human form God could express his love to humanity who God is. और परमेश्वर के प्रेम को मनुष्य रूप में ही वो लोगों को दर्शा सकता था कि परमेश्वर का प्रेम कैसा है। And verse 8. 8वां वचन, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सहन। Yeah. He being found in appearance as a man, he humbled himself. मनुष्य रूप को धारण करके वो अपने आप को दीन किया, नम्र किया। He humbled himself and became obedient to the point of death. और वो जो है इतना आज्ञाकारी बना मृत्यु तक। We are studying about God. हम परमेश्वर के विषय में पढ़ रहे हैं। God has made available himself for mankind in such a way that we cannot imagine how God came here. और परमेश्वर अपने आप को इस प्रकार से हमारे लिए दिया, हम उसका कल्पना भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते कि वो कितना प्यार से आया। God was in the form of God in eternity, came in human form to rescue you and me. और परमेश्वर जो अनंत काल का परमेश्वर था, अनंत में था, वो आपके पापों के लिए, आपको बचाने के लिए मनुष्य का रूप लेकर आया। And today we are sitting here and studying the word of God because of the great atonement that on the cross He has done for us. और आज अगर हम यहाँ बैठकर परमेश्वर के वचन को सीख रहे हैं, तो ये उस प्रायश्चित के वजह से जो क्रूस पे कैलवरी के क्रूस पर उसने किया। The Son of God was in the form of God. तो मनुष्य परमेश्वर का पुत्र परमेश्वर के रूप में था। That means He was God. इसका मतलब वो परमेश्वर खुद था। He is God. वो परमेश्वर है। On earth He was God. और धरती पर परमेश्वर है। In eternity past He was God. और अनंत काल से वो परमेश्वर है। Throughout the duration of the universe, when He created the earth, and even before that He was God. और जब वो सृष्टि करी तभी भी परमेश्वर था, सृष्टि से पहले भी वो परमेश्वर था। वेलावटी So we have studied Jesus was in the form of God. तो हमने देखा कि यीशु मसीह परमेश्वर के स्वरूप थे। Let's go a little further and see who God is. थोड़ा आगे चल के और देखेंगे कि प्रभु परमेश्वर कौन है। Please stand with us. The book of Colossians chapter 1 verse 15. कोलोसियों की पुस्तक उसका पहला अध्याय 15वां वचन। कोलोसियंस 1:15। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि का में पहलौता है,
16, 17, 18, 19. क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। वह सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है। 18 Yes. 18. वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वह आदि है और मरे मुंह में से जी उठने में पहलौता, ये सब बातों में वही प्रधान है। Verse 15 says who Jesus Christ is. और 15 वचन कहता है कि यीशु मसीह कौन है? He is the image of the invisible God. वो अदृश्य परमेश्वर का स्वरूप है। What is the meaning of image? समानता या स्वरूप, क्या मतलब है? प्रतिरूप। प्रतिरूप। We cannot look at God, हम परमेश्वर को देख नहीं सकते and because of that God personified in human form, और इसीलिए परमेश्वर ने जो है मनुष्य रूप लिया। he was invisible. वो अदृश्य था, No one could see him. कोई देख नहीं सकता था। The invisible God became visible to our naked eyes. अदृश्य परमेश्वर दृश्यमय हुआ हमारे लिए, And he is the image of the invisible God. और यीशु मसीह जो है उस अदृश्य परमेश्वर का स्वरूप है, प्रतिरूप है। People could see Jesus. People could see God. और लोग परमेश्वर को देखने पाए। When they saw Jesus, they saw God. जब यीशु को देखा तो उन्होंने परमेश्वर को देखा। As God is, no one can see him. और परमेश्वर जैसा है वैसे हम देख नहीं सकते उसको। And he is the firstborn of all creation. सारे सृष्टि में पहलौठा है। Doesn't mean that he was created. इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी सृष्टि की गई थी Before everything was there, he was there. और सब कुछ सृष्टि होने से पहले ही वो है, He is the creator. क्योंकि वो खुद ही सृष्टि करता है। Verse 16 says, by him all things were created. और 16 वचन कहता है उसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ। Everything in heaven, स्वर्ग में everything on earth, सारा कुछ जो पृथ्वी पर है, visible and invisible, जो दृश्य और अदृश्य है, whether thrones or dominion or principalities or powers, और राज्य हो या प्रधानताएं हो, जो भी है वो सब, everything is created by him. सब कुछ उसके द्वारा बनाया गया है। Also, he is a creator. तो वो एक सृष्टिकर्ता है The creator became savior. और वो सृष्टिकर्ता उद्धारकर्ता बन गया। The eternal God became our savior. और वो अनंत काल का परमेश्वर हमारा उद्धारकर्ता बना। Everything was created by him. सब कुछ उसके द्वारा सृष्टि किया गया। So if someone asks you this question, who is Jesus? अगर कोई आपसे पूछे यीशु कौन है, The image of the He is the image of the invisible God. वो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। Look at Jesus, you can see God. अगर आप यीशु को देखें, आप परमेश्वर को देखें, एक ही है। When you speak to Jesus, you are speaking to God. जब आप यीशु से बात करते हैं तो परमेश्वर से बात When करते you are हैं। praying to Jesus, you are praying to God. जब आप यीशु से प्रार्थना कर रहे हैं तो परमेश्वर से प्रार्थना कर When रहे you are singing song for Jesus, you are singing song for the Father. हैं। अगर आप यीशु के लिए गीत गा रहे हो तो परमेश्वर के लिए गीत गा रहे हो। When you worship Jesus, you are worshiping Father in heaven. और अगर आप यीशु की आराधना करते हो तो परमेश्वर जो स्वर्ग में उसकी आराधना करते हो। And He is before all things, and in Him all things consist. और वो सारी बातों में अव्वल है और उसी में सब कुछ है। Did you know that verse 17? Can you read it in Hindi? 17 वचन एक बार और पढ़ें। वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है। In Him all things consist. और जो है वो सब बातों में प्रथम है, अव्वल है और उसी में सब कुछ स्थिर है, He is the creator. क्योंकि वो सृष्टि करता है। Nothing came into existence without God. परमेश्वर के बिना कोई भी चीज उत्पन्न नहीं हुआ, Everything was empty. सब खाली था। From emptiness, He brought everything into existence. और जो है खालीपन से वो सारी बातों को मानो ऐसा है कि लेकर आया। Can you just imagine how creation took place?
जरा सोच के देखो कैसा बनाया होगा। Just imagine in your mind everything was empty. There was nothing at all. और जरा सोच के देखो पूरा कुछ भी नहीं था, Only खाली, vacuum was there. सिर्फ जो है ऐसे ही स्पेस था। Then God spoke, और परमेश्वर ने कहा let everything be. सब कुछ हुआ। Let birds come on the air. चिड़िया आने दो, Let animals be created. और जानवर आने दो, Let there be water. पानी होने दो, Let everything be divided. और दोनों का भाग हो जाए। God created everything in 6 days. सब कुछ 6 दिन में बनाया। Such a great God is the image of the invisible God who came here on earth. और ऐसा परमेश्वर उस अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप था जो इस धरती पर आया। He is the head of the church. वो कलीसिया का जो है मुखिया या सर है। We are the head of the church, right? हम परमेश्वर जो है परमेश्वर की कलीसिया के सर है। When we come in worship service, जब हम आराधना में आते हैं a command is given to ladies और जो है एक स्त्रियों के लिए एक आज्ञा दी गई है that ladies should cover their head when they sit in worship service. और जब आराधना में जाते हैं तो अपने सर को ढकना है। This is not in connection with our subject, but we just deviate and talk. ये हमारा सब्जेक्ट में नहीं है, लेकिन हम थोड़ा अलग होकर बोलते हैं। This is the teaching of Apostle Paul. ये प्रेरित पौलुस का शिक्षा है। He was moved by the Holy Spirit, and Holy Spirit enabled him to teach the New Testament church how people should behave in the church. और जो है वो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित होकर नए नियम का कलीसिया कैसा होना है वो सिखाया। So everything, how a church should be, how a pastor should be, how a bishop should be, how an elder should be, how believers should be, how everything is written in the Bible for our knowledge. और जो है एक कलीसिया में एक पास्टर कैसा होना है, एक लीडर कैसा होना है, एक विश्वासी कैसा होना है, ये सारी बातों को हमारे लिए यहाँ पर लिखा गया है हमारे भलाई। Jesus Christ is the head of the New Testament church. नए नियम के कलीसिया का यीशु मसीह सर है। And when he is the head, believers are subordinate to him. और जब वो कलीसिया का सर है तो हम विश्वासी जो है उसके साथी हैं। And the Bible teaches wife is subjected to husband. और बाइबल सिखाती है कि पत्नी जो है पति के अधीन है, Husband is the head of the family. क्योंकि परिवार का जो मुखिया है या सर है वो पति है। When husband is the head of the family, even though they are equal in authority, the Bible teaches always she is subject to the husband. और हालांकि जो है स्त्री और पुरुष दोनों एक ही लेवल के हैं, लेकिन बाइबल सिखाती है कि वो पति के अधीन रहे। And in order to honor the husband, a woman should cover her head when she sits in worship service. और उस पति का आदर करने के लिए जब वो आराधना में बैठे तो अपना सर को ढकना है। That's a New Testament teaching. ये नया नियम का शिक्षा Not है, my teaching. मेरा नहीं, It's not pastor's teaching. पास्टर का भी नहीं, The Holy Spirit taught it. और पवित्र आत्मा ने वो सिखाया। One day I told this thing in my church, एक बार मैंने अपनी कलीसिया में ये बोली and the sister told, "I'm not going to cover my head. What do you do?" और उस बहन ने बोला मैं तो अपना सर नहीं ढकूंगा, क्या करोगे? I told, "I cannot do anything. मैंने बोला मैं तो कुछ नहीं कर सकता, But what you're doing is you're disobeying the Holy Spirit." लेकिन जो तुम कर रहे हो वो पवित्र आत्मा का उल्लंघन कर रहे हो। When the Bible teaches something to do, our duty is just to obey. और जब बाइबल कुछ हमें सिखाती है तो हमारा कर्तव्य है कि हम उसको पालन करें। Now there are so many New Testament churches that against women covering their heads. और आज बहुत सारे नए नियम की कलीसिया है जो सर ढकने के विरोध में है, That's wrong. वो गलत है। Perhaps you may agree with me or not agree with me, आप चाहे मेरे साथ सहमत हो या ना हो, but the Bible says a woman should cover her head in the church, not in public meeting, not in prayer meeting. Even prayer meeting she has to cover. When gents sit, she has to cover her head. और जो है जब कलीसिया के जो आराधना के समय ऐसा ही नहीं, लेकिन कोई भी मीटिंग में जहाँ पुरुष भी है स्त्री भी है वहां उसको ढकना है। And if it doesn't, she dishonors her husband as well as God, the head of the church. ऐसा नहीं करती है तो फिर वो अपने पति का अनादर करती है और कलीसिया का भी अनादर करती In verse 18 says, Jesus Christ is the head of the body, the church.
और यहाँ पर वचन में लिखा है कि यीशु मसीह कलीसिया का सर है, He is the beginning. वो शुरुआत है, He is the firstborn from the dead. वो जो है पहला है, पहलौटा है मरे हुए में से। And in all things he may have the preeminence, we have to worship him. और इन सारी बातों में हमें उसे मुख्यत्व देना है, उसकी आराधना करना So है। Jesus Christ is the head because he is God. We have to abide by the principles of the New Testament. और जो है यीशु मसीह जो है कलीसिया का मुखिया है, सर है, इसीलिए नया नियम के हर जो बातें हैं उसके अधीनता में रहना है। In certain things I am very strict. और कुछ बातों में मैं बहुत ही सख्त हूँ। I don't compromise with the doctrine of the Bible. बाइबल के सिद्धांतों से मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं I करता, don't look at the face of the people. मैं लोगों की चेहरा नहीं देखता, I just teach the word of God. मैं सिर्फ परमेश्वर का वचन सिखाता हूँ। I am not the agent or salaried person of any church, any organization, any man on the earth. और जो है मैं किसी संस्था का या किसी कलीसिया का पगार लेने वाला व्यक्ति नहीं हूँ इस दुनिया में। Until now, I never taught tithes or offering in the church. अभी तक मैंने ऑफरिंग या भेंट या दशमांश के विषय में चर्च में सिखाया नहीं। I never take tithes or offering from the believers. मैं विश्वासियों से दशमांश और दान या भेंट नहीं लेता। I'm not saying it is wrong and you should not accept. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत है, आपको लेना नहीं है। Yes, you have to collect, हाँ, आपको लेना है, but I say my stand. वो मेरा जो है, मेरा जो तरीका है। Since I do not accept money from others, in the sense I am not for money's sake. I don't compromise with the word of God. और क्योंकि मैं किसी से पैसे नहीं लेता, मेरी तरफ से मैं नहीं लेता, तो मैं किसी की वजह से भी मैं परमेश्वर के वचन पे जो है समझौता नहीं करता। I know I am accountable to Him. मैं जानता हूँ मेरा लेखा जोखा प्रभु को देना है। If I compromise here, I will be ashamed in front of Him on the day of judgment. अगर मैं यहाँ पर समझौता करूँ तो न्याय के समय मैं वहाँ शर्मिंदा रहूंगा। I don't want to be ashamed in front of Him. परमेश्वर के सामने मैं शर्मिंदा नहीं होना People चाहता। come and go. लोग तो आते ही जाते हैं, Our God is eternal. हमारा परमेश्वर अनंत काल है। Whatever we do here, we are accountable to Him. हम जो कुछ भी यहाँ करते हैं, हम उसका लेखा जोखा देना है। Whatever, what is that is written Matthew 12:36. Please read it, Matthew 12:36. मत्ती 12:36 पढ़ेंगे। 12:36। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे। Whatever we say on this earth, we are accountable to God on the day of judgment. जो कुछ बातें या जो कुछ निकम्मी बातें, ये इंपॉर्टेंट है, निकम्मी बातें जो भी हम करते हैं उसका लेखा हमको न्याय के समय देना है। So Jesus Christ is the express image of the invisible God. तो यीशु मसीह जो है अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। In whom all fullness should dwell. और उसमें सारी पूर्णता बसती है। In Jesus Christ, all fullness consists of God. और जो है परमेश्वर की पूर्णता यीशु मसीह में नजर आती है। What is the meaning of that? इसका मतलब क्या है? What is the meaning of fullness? पूर्णता क्या है? What's the meaning of fullness? पूर्णता का क्या मतलब? Sometimes we pray, Lord, fill me, fill me, fill me, fill me. और कभी लोग प्रार्थना करते हैं, भर दे भर दे भर दे मुझे, Fill me with the Holy Spirit. पवित्र आत्मा से भर दे। Last week we have taught you, you have the Holy Spirit. पिछले सप्ताह हमने सिखाया कि आपके अंदर पवित्र आत्मा है। If you are born again, you have been given the Holy Spirit as a gift from God. और यदि आप नया जन्म पाए हो तो पवित्र आत्मा आपको उपहार के रूप में दिया गया है। Now what you need is fullness of the Holy Spirit. अभी आपको क्या चाहिए? परमेश्वर का भरपूर या भरना। People wrongly teach or believe that fullness of the Holy Spirit and the unction of the Holy Spirit are two different things. और जो है पवित्र आत्मा का आना और जो है पवित्र आत्मा से भरना, ये दोनों अलग बात है। The anointing of the Holy Spirit is different. The fullness of the Holy Spirit is different. पवित्र आत्मा का अभिषेक वो अलग है और पवित्र आत्मा से भरना वो अलग है। When have you been anointed by the Holy Spirit? पवित्र आत्मा के द्वारा कभी आपका अभिषेक हुआ?
प्रभु यीशु को माना। Yes. When you have got the Holy Spirit, you got anointing. और जब आपको पवित्र आत्मा मिला, यानी जब आपने प्रभु यीशु को अपने जीवन में ग्रहण किया, उसी वक्त पवित्र आत्मा आपको मिला। So anointing is not repeated. तो वहां पर अभिषेक तो वापस डबल नहीं आता। David was anointed as king only once. दाऊद को राजा अभिषेक एक ही बार हुआ। Solomon was anointed as king only once. सुलेमान राजा को भी राजा अभिषेक एक ही बार हुआ। And all the Old Testament priests were anointed as priests only once. और जितने भी पुराने नियम के याजक हैं, उनको भी एक ही बार अभिषेक किया So था। once anointed, always anointed. जब एक बार अभिषेक हुआ तो हमेशा के लिए अभिषेक So when किया। the Holy Spirit has come upon you, you are anointed by the Holy Spirit. जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आई है तो आप परमेश्वर आत्मा के द्वारा अभिषेकित हो। So what you need is fullness. अभी आपको क्या चाहिए? पवित्र आत्मा से भरना, Fullness of the Holy Spirit. परिपूर्णता से भरना। That means even though Holy Spirit in us, because of our human weakness, our physical problem, our physical nature, we quench the Holy Spirit by committing sin. और जो है पवित्र आत्मा अंदर होने के बावजूद हमारे कमियों के वजह से, हमारी कमजोरियों के वजह से हम कई बार पवित्र आत्मा को शोकित कर देते हैं। And because of that, the Spirit cannot work in us. और इसी वजह से पवित्र आत्मा जैसा काम करना है वैसा कर नहीं पाता। We pray and pray and pray, but no answer. हम प्रार्थना करते रहते हैं, उत्तर ही नहीं मिलता। We fast and pray, no answer. उपवास करके प्रार्थना करते हैं तो भी उत्तर नहीं We do मिलता। all sorts of things, but God is not giving answer. हम सब कुछ कर रहे हैं लेकिन परमेश्वर उत्तर ही नहीं दे रहा। What's the problem? समस्या क्या है? Deep inside, you have quenched the Holy Spirit. क्योंकि अंदर ही अंदर आपने पवित्र आत्मा को शोकित किया है। And unless and until you confess your sins unto the Holy Spirit and God the Almighty, unless and until you reconcile with the Holy Spirit, your prayer cannot be answered. और जब तक आप पवित्र आत्मा से अपने पापों का अंगीकार ना करो, परमेश्वर से अपने पापों का अंगीकार ना करो, तब तक पवित्र आत्मा शोकित रहेगा। And when the Holy Spirit is happy, your life will become all right. और जब पवित्र आत्मा खुश होगा आपसे तो आपका जीवन अच्छी तरह से Then the होगा, Holy Spirit will lead you. क्योंकि पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेगा। The wind will flow. और जो है वो हल्का सा वो जो है हवा बहेगी And the wind will direct your path. और वो हवा आपकी निर्देश करेगा। Whatever you do, there will be success. जो भी आप करें उसमें सफलता होगी। And that's what the Bible says. और यही बाइबल कहती है। The Holy Spirit comes sometimes in the form of wind and directs your path. और कभी कभी परमेश्वर की आत्मा एक हल्के झोंके, हवा की झोंके की तरह आता है और आपको मार्ग दिखाता है। And when you are in the Spirit and the Spirit is working in you, that is fullness of the Holy Spirit. और जब आप आत्मा में हैं और आत्मा आपको चला रही है, तब आप जो है एक पवित्र आत्मा के पूर्णता में The हो, Holy Spirit is guiding you. क्योंकि पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करता है। Holy Spirit is a person. पवित्र आत्मा एक व्यक्तित्व है। As God the Father is a person, as God the Son is a person, Holy Spirit is a person. जैसा परमेश्वर पिता एक व्यक्ति है, पुत्र भी एक व्यक्ति है, वैसे पवित्र आत्मा भी एक व्यक्ति है। You can talk to the Holy Spirit. आप पवित्र आत्मा से बात कर सकते हैं You can quench the Holy Spirit because it's a person. और आप जो है पवित्र आत्मा को शोकित कर सकते हो क्योंकि वो व्यक्ति है। And in Him, in Jesus Christ, there is the fullness of the Godhead. और यीशु मसीह में परमेश्वर का दैविकता का पूर्णता है। That's what you know. What is fullness? पूर्णता क्या है? Fullness in the you have to be in the Lord. पूर्णता ये है कि आपको प्रभु में बने रहना है। Now to be in the Lord, it is not necessary you should have PhD in theology. और अगर आपको परमेश्वर में बना रहना है तो आपको थियोलॉजी में पीएचडी करने की जरूरत नहीं है। You have to be a true obedient servant of God. आप परमेश्वर के आज्ञाकारी, परमेश्वर के दास बनना। Yield yourselves to God. अपने आप को परमेश्वर को सौंप दो। As Mary prayed, here I am the servant of God, let your will happen in me. जैसा मरियम ने प्रार्थना करी, तेरी दासी यहाँ पर है, जो तेरी इच्छा है वो मेरे जीवन में होने दे। If you can pray that to the Holy Spirit, Lord, not my will, but your will, let it happen, then the Holy Spirit will direct your path. और जब आप प्रार्थना करेंगे पवित्र आत्मा से, प्रभु मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरा हो, तब पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेगा। That is the fullness. यही पूर्णता है। Do you have that? आपके पास है वो? You should have.
आपके पास होना है। Every servant of God, every child of God should be always directed by the Holy Spirit. हर एक परमेश्वर के दास, हर एक परमेश्वर के संतान पवित्र आत्मा के द्वारा निर्देश हो पाना है। Jesus told, if I go, it is good for you. यीशु ने कहा मैं जाना आपके लिए अच्छा है। If I go, I will send the procurator, the Holy Spirit, who is a comforter, that he may dwell in you, that he may be with you always. क्योंकि मैं जाऊंगा तो मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, अर्थात पवित्र सत्य की आत्मा जो तुम्हें जो है उन सारे मार्गों में लेकर चलेगा। Fullness means the fullness of everything. पूर्णता मतलब सारी बातों में पूर्णता। Fullness of in Greek that is called pleroma. और यूनानी भाषा में अगर हम बोले उसे कहते हैं प्लोरोमा। Pleroma means fullness. प्लोरोमा मतलब पूर्णता, The sum total of everything. सारी बातों का एक सारांश। Suppose you say, I love you. अगर आप कहते हैं कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ, Love should be in fullness. वो प्रेम भी पूर्णता में होना है। I forgive you. अगर मैं कहता हूँ मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, Forgiveness should be in fullness. In वो fullness. क्षमा भी पूर्णता में होना है, Complete forgiveness. पूरी तरह से क्षमा। When God gives you, He gives you in fullness. क्योंकि जब परमेश्वर आपको कोई चीज देता है वो पूर्णता से देता है। When God gives you salvation, He gives you salvation in fullness. और जब आपको उद्धार देता है तो पूर्णता से आपको उद्धार देता है। When God gives you forgiveness, in fullness He gives you. जब परमेश्वर आपको क्षमा देता है तो पूर्णता से क्षमा When करता है। God gives you peace, the full sum total of the peace of God He will give. और जब वो आपको शांति देता है तो संपूर्णता से पूरी तरह से आपको शांति देता है। God doesn't give part by part, little by little. परमेश्वर टुकड़ों में नहीं देता, थोड़ा थोड़ा करके नहीं देता। When God heals you, He heals completely. आमेन। और जब परमेश्वर चंगा करता है तो पूर्ण रूप से चंगा When करता He है। blesses you abundantly. और जब आपको आशीष देता है तो बहुतायत से आशीष देता है, He is the fullness of God. क्योंकि वो परमेश्वर की पूर्णता है। It pleased the Father that in Him all the fullness should dwell. और ये परमेश्वर को भाया कि उसमें सारी परमेश्वर की पूर्णता हो। Please read verse 19 once again. 19वां वचन पढ़े एक बार। Colossians 1:19. कोलोसी की पुस्तक 1:19। एक का 19। क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे। आमेन। What was in Jesus Christ? मसीह में क्या था? The fullness of God. परमेश्वर की परिपूर्णता। The what God the Father was, it was in Jesus. जो परमेश्वर पिता के पास था वो पूरा पुत्र के पास भी था। That it is because of that Jesus told, the one who has seen me has seen the Father. इसीलिए यीशु ने कहा जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा है। Jesus Christ is the sum total of God the Father. यीशु मसीह जो है पिता का एक स्वरूप है, संपूर्ण रूप से। He is not different God. वो अलग परमेश्वर नहीं है। That is the way He manifested on this earth to show God to us. और इसी प्रकार से वो प्रकट हुआ ताकि परमेश्वर को हमें दर्शाए। Is it true? सही है। Please turn to 1 Timothy chapter 3. पहला तिमोथी उसका 3रा अध्याय देखेंगे। पहला तिमोथी 3रा अध्याय Verse 16. 16 वचन। पहला तिमोथी 3:16। इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया गया। Yes. In Hindi, can you please read again the beginning? इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ। वह जो इंग्लिश में क्या लिखा है? He who. But in my Bible it is written, this New King James Version, God was manifested in the flesh. लेकिन किंग जेम्स वर्जन में लिखा है कि परमेश्वर मनुष्य रूप में प्रकट हुआ। In Marathi, how is it written? मराठी है किसी के पास? No Marathi. No, it's okay. मराठी है? He appeared. Okay. Without controversy, great is the mystery of godliness. और बिना संदेह के
भक्ति का जो भेद है वो बड़ा है। What is godliness? भक्ति क्या है? God was manifested in the flesh. भक्ति ये है कि परमेश्वर मनुष्य रूप में प्रकट हुआ। So who came in flesh? तो कौन आया? Jesus, God. परमेश्वर। See, if anyone asks you when it is written that God came here, just for 1 Timothy 3:16. अगर कोई पूछे प्रभु आया क्या, परमेश्वर आया था क्या धरती पे, तो पहला तिमोथी 3:16 बताओ उसको। It is easy to remember also. इसको सीखना भी आसान है। पहला तिमोथी 3:16, 1 Timothy 3:16. यूहन्ना 3:16 और यहाँ पर तिमोथी 3:16। Okay, God was manifested in flesh, परमेश्वर शरीर में प्रकट हुआ, justified in the spirit, आत्मा में परिपूर्ण हुआ and seen by angels, और स्वर्गदूतों के द्वारा दिखाई दिया preached among the Gentiles, और अन्य जाति में प्रचार हुआ believed on in the world, और पूरे विश्व में जो है उस पर विश्वास किया and then received up in glory. और फिर महिमा में उठा लिया गया। So this is the sum total of Godhead that came on this earth. और ये परमेश्वर का ये पूरा जो है एक सारांश है जो इस दुनिया में आया उसका। God became man. परमेश्वर मनुष्य बना। Actually, it is an impossible thing. सही मानों में एक नामुमकिन बात है। Few years before, I was attending the greatest Asian convention, Christian convention in Kerala. That's called Maraman Convention. और मरामन कन्वेंशन करके केरला में एक बहुत बड़ा कन्वेंशन हुआ, उसमें पास्टर हिस्सा लिए। It's not now, 50 years before. 50 साल पहले की बात बता रहा हूं। Okay, I was sitting, nearly 1 lakh, 2 lakh people gathered there. 1-2 लाख लोग वहां जमा हुए थे And the preacher on that day was the one who went to moon and brought a small stone from the moon. और वहां पर जो प्रचार करने वाला था वो व्यक्ति था जो चांद में जाकर वहां से पत्थर लेके आया था And he showed the stone. और उसने वो पत्थर दिखाया। I was sitting about 1 furlong away from the stage. काफी स्टेज से पीछे बैठा था, But he showed the stone. उसने वो पत्थर दिखाया And he told, this is a stone I brought from the moon. और वो बताया कि ये वो पत्थर है जो मैंने चंद्रमा से लिया है। I walked in the moon. मैं चंद्र में चला। But that is not great thing. वो बड़ी बात नहीं है। Man could go there, but the greatest thing on the earth is not man walking in the moon, but God walking on the earth. आमीन। और बड़ी बात ये नहीं है कि मनुष्य चांद पर चला, बड़ी बात यह है कि स्वर्गीय परमेश्वर जो है धरती पर चला। God walked on the earth. परमेश्वर धरती पर चला। That is the biggest news. और ये सबसे बड़ा जो है संदेश है। God became man. परमेश्वर मनुष्य बना। Is it not wonderful? क्या ये अद्भुत नहीं? Yes. The manifestation of the Lord, or the personification of the Lord Almighty in human form, took place through Jesus Christ. परमेश्वर का प्रकट होना या मनुष्य के रूप में जो है परमेश्वर का आना यीशु मसीह में पूरा हुआ। So we are studying about the Godhead. He is the express image of God. और वो जो है उस परमेश्वर का प्रतिरूप है। Come on, let us turn to the book of Hebrews chapter 1. इब्रानी की पुस्तक 1 अध्याय देखेंगे। 1, 2 and 3. पहला, दूसरा, तीसरा वचन। इब्रानी 1:1-3। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति के भविष्य वक्ताओं के द्वारा बात करी। इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महिमा मन के दाहिने जा बैठा। God in time was, in various times, spoke through the prophet to people. और जो है पूर्व में परमेश्वर ने अपने बाप दादाओं से बाती बाती में थोड़ा थोड़ा करके बात किया। Little by little he revealed. थोड़ा थोड़ा करके प्रकट किया अपने आप को। The prophecy regarding Jesus Christ that was given unto David was not the one gave to Micah. और जो है जो भविष्यवाणी
दाऊद को पर यीशु के विषय में दी गई थी, वही भविष्यवाणी मीका को नहीं दी गई थी। That which was given to Zechariah was not given to Isaiah. और जो जकरिया को जो प्रकाशन दिया गया था वो यशायाह को नहीं दिया गया था। God spoke little by little, time after time to people in various ways. और परमेश्वर जो है बाती बाती से समय समय में लोगों को थोड़ा थोड़ा करके प्रकट किया। But these last times He spoke to us through His Son. लेकिन इन अंतिम दिनों में परमेश्वर के पुत्र के द्वारा हमसे बात किया। He now a description is given who Jesus is. यहाँ पर यीशु कौन है उसका एक चित्र वर्णन किया हुआ है। Number one, He is the heir of all things. वो सारी बातों में जो है उसका क्या उत्तराधिकारी है, Because He made the world. क्योंकि वही दुनिया को बनाया। Since He is a creator, everything belongs to Him. क्योंकि वो सृष्टि करता है, सारी बातें उसकी है। But in verse 3 He says, He is the brightness of God's glory. और तीसरा वचन कहता है वो परमेश्वर की महिमा का स्वरूप है। Who is Jesus? यीशु कौन है? Brightness of God's glory. परमेश्वर का महिमा का वो प्रकाश है। No one could or can behold the brightness of God. परमेश्वर की उस महिमा को या उस प्रकाश को कोई नहीं देख सकता। But Jesus represented God on earth. लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर का प्रतिनिधित्व बनकर आया। God became man. परमेश्वर मनुष्य बना। Why did He become man? क्यों मनुष्य बना? So that He must become our substitute. ताकि वो हमारे लिए हमारे एवज में वो आए, To die on behalf of us. हमारे लिए वो मरे, To take all the sum total of our sin on His body, or the consequence of sin, which is death, on His body. और ताकि वो हमारे सारे पापों को, अपने सारे पापों का जो प्रभाव है वो सारे प्रभाव को अपने ऊपर लेने के लिए, For that purpose He came here. इसीलिए वो इस जगत में आया। But He was the express image of His person. और वो जो है उस व्यक्ति का जो है प्रतिरूप था। He was the brightness of God's glory. वो परमेश्वर के महिमा का जो प्रकाश था, But He gave up the glory in heaven and came here. लेकिन उस महिमा को वहां छोड़कर आया। Then He says He is the express image or the brightness of God. और यहाँ पर कहता है कि वो परमेश्वर के उस प्रकाश का स्वरूप है, Express image. और एकदम हूबहू वही है। Exactly who God is, that was Jesus on earth. और जैसा परमेश्वर है हूबहू वो वैसे ही था। We take Xeroscopy, right? हम जेरॉक्स कॉपी निकालते हैं, The exact print what we give or we get, of which that we keep on the Xerox machine. और जो है हमें जेरॉक्स मशीन में से क्या निकलता है, जो हमने दिया, जो चीज हमने दिया है उसी का एकदम सेम कॉपी हमको मिलता है। That's the exact copy. वो है उसका सही प्रतिरूप। Jesus Christ is the express image of the Almighty God. और परमेश्वर ये जो परमेश्वर का जो हूबहू स्वरूप जो है वो यीशु मसीह। Who told it? किसने कहा? God told it. परमेश्वर ने कहा। It's not man's version, it's God's version. ये परमेश्वर का लिखा हुआ नहीं, मनुष्य का लिखा हुआ नहीं, परमेश्वर का। So God came on this earth so that He may show to us who God is. और जो है यीशु इस जगत में इसलिए आया ताकि वो बता सके कि परमेश्वर कौन है। He hold everything in His hand. वो उसने सारी बातें अपने हाथों में रखी है Everything is under His power. और सारी बातें उसके नियंत्रण में है। He purged our sins उसने हमारे पापों को शुद्ध किया and sat down at the right hand of the Majesty on high. और जो है सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस दाहिने ओर जा बैठा। Our salvation is written here. हमारा उद्धार यहाँ पर लिखा हुआ है। Jesus came. God came on earth not to give us salvation. परमेश्वर इसीलिए इस जगत में आया ताकि हमें उद्धार दे। So God did not send an angel. तो उद्धार के लिए परमेश्वर ने कोई स्वर्गदूत को He नहीं would have भेजा। told Michael or Gabriel or another angel to go on behalf of whom not to die for mankind. वो जो है मिहावेल को या गाब्रिएल को बोल सकता था जाके कर करके, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। It was possible.
वो हो सकता था। An angel would have been happy to come here to die for us. और हमारे लिए तो मरने के लिए कोई भी स्वर्गदूत खुशी खुशी आ सकता था, But we wouldn't have come to know what the love of God is. लेकिन अगर स्वर्गदूत आता तो हम परमेश्वर के प्रेम को जान नहीं पाते। Today we know who God is. आज हम जानते हैं प्रभु कौन है, परमेश्वर God कौन is है। love. परमेश्वर प्रेम है। God is love because He loved me. परमेश्वर प्रेम इसलिए है क्योंकि उसने मुझसे प्रेम He किया। loved you. वो आपसे प्रेम किया, He loves you. वो आपसे प्रेम करता है। He loves you more than your father and mother. आपके माँ बाप से बढ़कर वो आपसे प्रेम He करता है। loves you more than your husband and wife. आपका पति पत्नी से भी बढ़कर आपसे प्रेम He करता है। loves you more than your children. आपके बच्चों से बढ़कर वो आपसे प्यार He करता है। loves you more than your brother and sister. आपके भाई बहन से बढ़कर वो आपसे प्रेम So करता है। God is love. परमेश्वर प्रेम है, That's the purpose He came here. इसी उद्देश्य से वो आया। Jesus Christ is express image of God Almighty. यीशु मसीह जो है हूबहू उस परमेश्वर का स्वरूप है। So there's nothing wrong in believing that God, Jesus Christ is God. ये सब जानने के बाद परमेश्वर यीशु मसीह ही परमेश्वर मानने में कोई दिक्कत ही नहीं। We believed. हम विश्वास करते हैं, हाँ या ना? Because we believe that Jesus is God, we are Christians today. क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर है, आज हम मसीह कहलाते Who हैं। is a Christian? एक मसीह कौन है? One who believes in Christ. जो मसीह पे विश्वास करता है वो मसीह। There are many sects in Christianity. और मसीहत में कई पंथ है। They teach or they look like Christians, but they are not Christians. वो दिखने को मसीह दिखते हैं लेकिन मसीह नहीं। There is a sect called Yahweh Witness. और कुछ ऐसा पंथ है जिसको यावे गवाही बोलते हैं, Jehovah's यहोवा Witness. विटनेस। Yeah, Yahweh Witness. Jehovah's. They are not Christians. वो मसीह नहीं है, They say they are Christians. वो बोलते हैं हम मसीह हैं। They believe in Yahweh. वो यावे परमेश्वर पे They विश्वास don't करते हैं believe in Jesus. लेकिन यीशु पे नहीं करते, They don't believe in Holy Spirit. पवित्र आत्मा पे विश्वास नहीं करते। Which means they believe partially what the Bible teaches, fully they don't believe. इसका मतलब ये है कि जो बाइबल में लिखा है वो पूर्ण रूप से विश्वास नहीं करते, आधा विश्वास करते So हैं। Christian is a person who believes that God came on earth for me and I'm saved because of his death, atonement death on the cross. और जो है सच्चा मसीह वो है जो विश्वास करता है कि परमेश्वर मेरे लिए आया और उसके क्रूस पर उसने जो प्रायश्चित की उसके द्वारा मैं बचाया गया। So such a way there are so many Christians. ऐसे कई मसीह लोग हैं। Tomorrow people can ask you, are you a Christian? कल पूछेंगे लोग, आप मसीह हो क्या? What will you say? क्या बोलोगे? But more than that, you should say, I'm a disciple of Jesus. उससे बढ़कर आपको क्या बोलना है? मैं यीशु मसीह का चेला हूँ। I'm a disciple of Jesus. मैं यीशु मसीह का चेला हूँ। Anyone can be a Christian. कोई भी मसीह बन सकता है He's a church goer. और वो हो सकता है कलीसिया जाने वाला व्यक्ति हो, Carries the word of God in his hand. हाथ में बाइबल लेके चलता हो, He may be a man of prayer. वो प्रार्थना का व्यक्ति हो। That's the difference between a Christian and a disciple. एक शिष्य में और एक मसीह में फर्क है। A disciple is a person who follows the master. और एक शिष्य वो है जो अपने मालिक के पीछे चलता है And Jesus is the master of the disciple. और शिष्य का मालिक कौन है? यीशु मसीह। So we have to be disciples of Jesus. तो इसीलिए हमें क्या बनना है? यीशु का शिष्य बनना है। Before Jesus sent the disciples, he taught them 3.5 years. और शिष्यों को भेजने से पहले यीशु मसीह ने अपने चेलों को 3.5 वर्ष सिखाया। Where did they study? कहाँ सीखा? There was no university. कौन सा यूनिवर्सिटी में? There was no Bible college. वहाँ बाइबल कॉलेज भी नहीं There था, was no Bible institute. बाइबल इंस्टीट्यूट भी नहीं था। Jesus himself was the college. वहाँ पर यीशु मसीह खुद ही कॉलेज था And the disciples went with Jesus. और यीशु के साथ तो शिष्य चलने लगे। Where Jesus sat, the disciples sat. जहाँ यीशु बैठा वहाँ वो बैठे Where Jesus taught, the disciple listened. और जहाँ यीशु सिखाया वहाँ पर चेलों सुने Where Jesus slept, disciples slept there. और जहाँ यीशु सोया वहाँ पर शिष्य भी सोए। So the disciple looked at the master and studied. तो यीशु को उनके शिष्यों ने देखा और सीखा। Then he told, go, and now you are mature, you are graduate. और उसके बाद सिखाने के बाद फिर बोला जाओ, अभी तुम क्या हो गए? ग्रेजुएट हो गए।
BTS हो गया आपका। As long as we live here, we have to be disciples. जब तक हम जीवित रहेंगे तब तक हमें शिष्य बनकर रहना। Study, 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 study. पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। Sometimes I say I spend more than 18, 19 hours every day with the Bible. और कई बार जो है 18 से 19 घंटे में बाइबल पढ़ता हूँ। I sleep only 6 hours. 6 घंटा ही सोता हूँ। 12 hours to 6 o'clock in the morning. रात को 12 बजे से सुबह 6 बजे तक। After the morning routine, bath and everything, I sit with Bible. और जब सुबह का सब कार्यक्रम खत्म होने के बाद फिर बाइबल लेके बैठ जाता हूँ। I like to read Bible मैं बाइबल पढ़ना पसंद करता because हूँ Jesus is my master. क्योंकि यीशु मेरा मालिक है। I talk to Jesus, मैं यीशु से बात करता he हूँ, talks to me. वो मुझसे बात करता है। Sometimes through the word of God, कई बार वचन के द्वारा sometimes he speaks in my mind. और कभी अब मेरे मन में, मेरे विवेक में बात करता So है। when we are one with Jesus, he will talk to us. जब हम परमेश्वर के साथ एक हो जाएंगे वो हमसे बात करेगा। He is always God. वो हमेशा परमेश्वर है। Forever and ever he is God. हमेशा हमेशा के लिए वो परमेश्वर है। Hebrews 13:8 says, yesterday, today and forever, he is God. और इब्रानी की पुस्तक 13 अध्याय 8वां वचन कहता है वो आज कल और युगान युग परमेश्वर एक ही है। Eternally he is God. हमेशा के लिए वो परमेश्वर है। It was not like that he was born in heaven and he came on earth, he was not God. और ऐसा नहीं कि वो स्वर्ग में परमेश्वर था, धरती पे आके परमेश्वर ना रहा। Now let us see biblical study. You want to sit more or close here? बंद करें।